Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to continue with the 8th chapter of your geography portion, that is the human settlements, transport and communication. In our last two classes regarding this chapter, we have already studied that what do we mean by this settlement, that is the cluster of houses where human beings live is called settlement. Then after that we had studied about the origin of the settlement, that how come we have started living as the group or as a society and formed the well functioning society around us. Then later on we had studied about the urban and the rural settlement, that how people in the urban areas are settled down and how the people of rural areas are settled down. Then after that we had studied about the temporary and the permanent settlement, that what do we mean by the when we say that some settlement is a temporary, some settlements are the temporary settlements and other settlements are the permanent settlements. For the temporary settlement, we had seen that the people, they will going to live for a certain time period at some place, and later on they will going to move to some another place. Then for the permanent settlement, we had seen that if the people are living at certain place for very long time, it is called the permanent settlement. Then later on we had studied about the compact and the dispersed settlement, that what do we mean by the when we say any settlement is a compact settlement, and what do we mean when we say what if any settlement is a dispersed settlement, in which we had seen for the compact settlement the people are living very close, are living in very close vicinity with each other, and for these dispersed settlement we had seen that people are living at far off places from each other. Then later on we had studied about the pattern of rural settlements, that how the people in the rural areas are settled, in which we had seen the circular pattern, which was basically found around the lake, pond, oasis in the desert areas. Or then we have seen about the linear settlement. This type of settlement is found around the canal or the railway line or the highways. Then after that we had studied about the rectangular settlement, that the side type of settlement which is developed at the crossroads. Then after that we had studied about the triangular pattern, in which the settlements was developed at the confluence of two rivers. Then after that we had studied about the pattern of urban settlement, that how people in the urban areas are settled down. In that we had seen the industrial town, that the town where the prominent industries are there, the people are settled there. Then after that we had seen the settlements of the market towns, where the market was the most prominent thing which attracted the people towards that town, and people are settled over then. Then after that we had seen administrative towns, then the cultural towns, sport towns and the resort towns. So like this we have completed the first part of the first heading of your chapter, that is the settlements. Today we are going to start with the next part of the heading of the chapter, that is your transportation. What do we mean by the transportation and how it is helping us in our day-to-day life, we are going to see in few coming classes. So let's start. What do we mean by transportation? Basically, transportation is free flow of traffic and goods from one place to another place constitutes transport. मतलब किसी भी चीज़ का या हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारे लिए एक लाइफलाइन का काम करता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं रोज़ खुद कहीं जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हम कहीं से लेकर आते हैं, और हम अगर नहीं लेकर आते हैं तो हमारे लिए कोई लेकर आता है और उन सामानों को हम ख़रीदते हैं. तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफलाइन की तरह एक्ट करता है. देन नेक्स्ट हेडिंग इन योर बुक इज़ द ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. देखो पहले बेसिकली हम अपने पैरों पर ही चलते थे, वी यूज़ टू वॉक ऑन आवर फीट्स, जब हमारे यहाँ किसी भी तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. फिर हमने जो
एनिमल्स थे उनको टेम करना शुरू किया, उनको एज अ कैटल अपने यहाँ रखने लगे। तो हमने जब उनको एज अ कैटल अपने यहाँ रखा तो हमने उनको अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनिमल यूज़ होता है इट इज़ दी हॉर्स एंड कैमल्स। इसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के आप कह सकते हो कि एनिमल्स थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। कहीं पे याक्स होते थे, कहीं पे एनिमल्स कहीं पे कैमल्स होते थे, कहीं पे हॉर्सेस होते थे, कहीं पे बफेलोज होती थी। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन आया और हमारे यहाँ व्हील जो थी वो इन्वेंट हुई। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील हमारे यहाँ बुलक कार्ट्स और भी बहुत सारी तरह की वेगन्स और भी बहुत सारे के कार्ट्स डेवलप हुए और इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स था वो थोड़ा और डेवलप हुआ। देन उसके बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी वो तो रिवॉल्यूशन उसमें आया ही है, रिवॉल्व हुई। लेकिन फिर उसके बाद आपके जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया वो था आपका मीन्स एंड दी वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पर हमारा जो मीन्स था, पहले कैमल था, एलिफेंट्स थे, याक्स थे, हॉर्सेस थे। अब हमने क्या किया, हमने अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बदल के हमारे यहाँ मोटर व्हीकल्स, बाइसिकल, साइकिल्स, देन योर वेगन्स, मोटराइज्ड वेगन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, ये आपके मेट्रो रेल्स अब तो आ गए हैं एंड मैनी मोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने धीरे धीरे अपने यहाँ डेवलप कर लिया है। अच्छा, जो हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है आपका थ्रू दी रोडवेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन की दैट इज़ योर रोडवेज। तो जो रोड्स हैं वो हमारे यहाँ दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डेवलपमेंट का वो है आपका रोड। अगर रोड ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं पर जा नहीं सकते हैं। जब हम कहीं जाएंगे नहीं तो उस जगह को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता उस जगह का। तो इनिशियली हमारे यहाँ जो रोड्स होती थी वो देवर दी कच्चा रोड्स, ऐसी रोड्स होती थी जो मड की बनी होती थी। बट धीरे धीरे हमने उस कच्ची रोड को पक्का करना शुरू किया थ्रू द यूसेज ऑफ दी टारकोल एंड दी पेबल्स। फिर धीरे धीरे हमने बहुत सारी नई टेक्निक्स डेवलप कर ली जिससे हमने बहुत अच्छी और एफिशिएंट रोड्स बनानी शुरू कर दी हैं। देन हमने एक नेटवर्क ऑफ रोड्स भी तैयार किया जिसको हम हाईवेज़ कहते हैं। देन हमारे यहाँ हाईवेज़ भी जो होते हैं वो हमें एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ते हैं। हमारे यहाँ जो रोडवेज़ होती हैं, जो रोड्स होती है वो हमें विद इन अ सिटी भी ट्रैवल करने में मदद करती है। और फिर ये जो विद इन अ सिटी हम ट्रैवल करते हैं ये अगर हमको कनेक्ट करती है, हमारी रोडवेज़ हमको हाईवेज़ तक कनेक्ट करती है। और ये जो हाईवेज़ होते हैं हमको अलग अलग यू कैन से कि अलग अलग सिटीज़ तक हमको कनेक्ट करते हैं। जो इंडिया में अगर आप नेशनल हाईवेज़ की बात करो तो वो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ते हैं। और वहाँ पर जो कुछ ऐसे भी हाईवेज़ हैं जिनको हम एक्सप्रेस वेज कहते हैं, जो कि वाइड रोड्स होती हैं, जो इनको स्पेशली फास्ट मोटर ट्रैफिक के लिए बनाया जाता है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाईवे इज़ दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट corridors that will join Srinagar to Kanyakumari from north to south and Bhuj to Guwahati from west to east। और ये जो रूट्स हैं ये हमारे इंडिया के यू कैन से एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करते हैं। कुछ ऐसी भी रोड्स हैं हमारे इंडिया में जो ऐसी जगहों पर बनाई गई हैं जहाँ पर रोड्स बनाना बहुत मुश्किल था, जैसे लेह मनाली। और ये जो लेह मनाली का हाईवे है इट इज़ दी वन ऑफ दी हाईएस्ट रोड्स इन दी वर्ल्ड। देन नेक्स्ट कम्स योर रेलवेज़। रेलवेज़ हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, बट आज के टाइम पर हमारे यहाँ जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें वो गुड्स और पैसेंजर्स दोनों को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। और हमारे यहाँ जो रेलवेज़ है उसको लाइफलाइन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है और कहा
जाता है। और ये जो रेलवेज़ है ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका डेंस नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा ट्रेन्स हमारी ही कंट्री में चलाई जाती है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. फॉर द फर्दर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर वी विल गोइंग टू मीट अप इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड.